ریسپیکٹ کے ساتھ فائر آف گاڈ منسٹریز کے پلیٹ فارم پہ سسٹر سونیا کو انوائٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی سسٹر سونیا عاشر آپ آئیے اور خداوند کا زندہ پاک کلام ہم سب کے ساتھ شیئر کیجیے. ویلکم. جلالی پاک اور مقدس نام میں آپ سب کو سونیا عاشر کی طرف سے بہت بہت سلام، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خداوند میں خیریت سے ہوں گے، اور آپ سب کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ خداوند اسی طرح آپ سب کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھے. ہاللیلویا. آئے عزیزو، ہم خداوند کے مقدس کلام کی طرف بڑھتے ہیں، خدا کے کلام کی گہری باتوں کو سیکھتے ہیں. ہاللیلویا. آج جو میں آپ کے ساتھ خداوند کے مقدس کلام کو بیان کرنا چاہتی ہوں وہ ہے مرکز کی انجیل اور اس کا 9 باب، اور اس کی ہم آیت 14 میں دیکھتے ہیں. یہاں پر یسوع ایک بدرو گرفتار لڑکے کو شفا دیتا ہے. یہ واقعہ ہمیں متی کی انجیل میں بھی ملتا ہے، لوکا کی انجیل 9 باب میں ملتا ہے، اور متی کی انجیل اس کے 17 باب میں ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے. ہم سیکھیں گے مرکز کی انجیل میں سے. یہاں پر یسوع جو ہے ایک بدرو گرفتار لڑکے کو شفا دیتا ہے، اور اس معجزے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو، پترس کو، یعقوب کو، یوحنا کو ہموار لیتے ہیں اور ایک الگ اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے جاتے ہیں، اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جہاں پر صورت بدل جاتی ہے، اور وہاں پر جو یسوع کے شاگرد ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یسوع کے ساتھ جو ہیں وہ 2 اور شخص ہیں. تو یہاں پر ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں یہ معجزہ ملتا ہے 14 آیت میں کہ یسوع جو ہے ایک بدرو گرفتار جو لڑکا ہے اسے شفا دیتا ہے. اور ہم خدا کے کلام میں سے یہ پورا واقعہ، آپ سب اس واقعے کو جانتے کہ وہ لڑکا جس کے اندر بدروہیں تھی، اور جب اس کے اندر بدروہیں آتی تھی اور وہ بدروہیں انہیں کیا کرتی تھی، بدروہیں جو تھی انہیں مڑوڑتی تھی اور اس کے کیا کرتی تھی، اس کے منہ سے جھاگ نکلتی تھی، اور اس سے جیسے مرغی کے دورے پڑتے تھے وہ دانت پیستا تھا اور وہ سوکھتا جاتا تھا. تو یہ معجزہ ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے، یہاں پر لکھا ہے 14 آیت میں، اور جب شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے اور فقی ان سے بحث کر رہے ہیں، اور فی الفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر اسے سلام کرنے لگی، اور اس نے ان سے پوچھا، تم ان سے کیا بحث کرتے ہو؟ اور بھیڑ میں سے ایک نے اسے جواب دیا کہ اے استاد، میں اپنے بیٹے کو جس میں گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا، تیرے شاگردوں کے پاس لایا تھا، اور وہ جہاں اسے پکڑتی ہے پٹک دیتی ہے، اور کف بھر لاتا اور دانت پیستا اور سوکھتا جاتا ہے. میں نے تیرے شاگردوں سے کہا تھا کہ اسے نکالے، مگر وہ نہ نکال سکے. تو یہاں پر ایک واقعہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کیا کرتا ہے، وہ یسوع کے شاگردوں کے پاس لے کر آتا ہے تاکہ اس کے بیٹے میں سے بدروحوں کو نکالا جائے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک واقعہ اس میں ہمیں 4 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں جن پر آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، اور ہم دیکھیں گے اپنے آپ کو کہ وچ گروپ وی آر بلونگنگ، کہ ہم کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کس گروپ میں اپنے آپ کو فٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ اس کو بعد میں پڑھ سکتے ہیں اس پورے واقعے کو، آپ اپنے آپ کو ہم دیکھیں گے کہ ہم کس گروپ میں اپنے آپ کو فٹ کرتے ہیں. یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے فقی، پھر اس کے بعد ہمیں وہ شخص جس میں بدرو تھی، وہ لڑکا اور لڑکے کا باپ اور شاگرد. ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم کس گروپ میں فٹ ہوتے ہیں اور اس سے ہم کس طرح اپنی زندگی میں خدا کے کلام کو لے سکتے ہیں اس معجزے سے. ہاللیلویا. تو یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کریں گے وہ لڑکا جس میں بدروہیں تھی.
जिसमें बदरू थी, और वो बदरू कैसी बदरू थी? गूंगी और बहरी। कौन सी बदरू थी? गूंगी और बहरी। और वो बदरू जो थी वो लड़के को क्या करती थी? उसे आग में भी जलाती थी, उसे पानी में भी डाल देती थी कि वो खुदकुशी कर ले, उसे मरोड़ती थी, और उसके मुंह से गंदगी निकलती थी, उसके मुंह से झाग निकलती थी, और वो उसे जमीन पर पटक देती थी। इस कदर उस लड़के का बुरा हाल था। और वो लड़का क्या था? उसका बाप कहता है वो सूखता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी जिंदगियों पर गौर करेंगे, आया हमें फिजिकल हम ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा। बहुत से बहन भाई हैं जो गिरफ्तार है, अबलीस की कैद में है। वो उनके साथ ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो आग में डाले जा रहे हैं, या वो बदरू जो है उसे पटक देती है, या वो जमीन पर उसे पटकती और उसे मारती है, और वो तरह तरह से उसे जख्मी करती है। लेकिन अगर हम देखें तो हम भी अबलीस की कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अबलीस की कैद में हैं। हम अपने आप को चेक करें कि आया हम अबलीस की किसी कैद में तो नहीं, उसने हमें जकड़ा तो नहीं हुआ। जिस तरह खुदा के कलाम में गलतियों की किताब उसका 5 बाब और उसकी 19 और 20 आयत में हम देखें तो वहां पर हमें मिलते हैं जिस्म के काम तो जाहिर है। क्या है? जिस्म के काम तो जाहिर है। कौन से जिस्म के काम? जो हमारा जिस्म करता है। जिस्म हमारा क्या काम करता है? हम खुदा के कलाम में देखते हैं, लिखा है खुदा के कलाम में, गलतियों 5 बाब और उसकी 19 आयत में लिखा है, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदते, बुग्ज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद। ये है जिस्म के काम। और ये जो काम है ये किसी ना किसी तरह से एक जो है स्पिरिट है, एक बदरू है, जिस तरह हम कहते हैं गुस्से की बदरू, जेलिसी की बदरू, झगड़े की बदरू, तफर के डालने वाली बदरू बदरू बिदतें, जादूगरी की बदरू, बुत परस्ती की बदरू, शहवत परस्ती की बदरू, नापाकी की बदरू। तो हम देखें कि हम कहीं इन बातों में, इन चीजों में झगड़े तो नहीं हुए? क्या हम इस ग्रुप से बिलोंग तो नहीं करते? हमारा इस ग्रुप से, हम इस अपने आप को कहीं इस ग्रुप में तो नहीं फिट करते? हमारे अंदर अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज है तो इसका मतलब है कि हम इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने आप को क्या करना है? इससे निकालना है, क्योंकि ये जिस्म के काम है। हमें अपने आप को इस ग्रुप से निकालना है। अगर हम कहीं ना कहीं इस ग्रुप से हमारा ताल्लुक है, हम इससे बिलोंग करते हैं। तो हमने देखा पहला ग्रुप जो कि वो लड़का जिसमें क्या थी? बदरू थी। अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे लड़के का बाप। वो लड़के का बाप जिसके अंदर बदरूहें थी। आया हम उस लड़के के बाप जैसे ग्रुप में है? हम अपने आप को चेक करेंगे आज। जिस तरह उस लड़के के बाप ने क्या किया, उस लड़के के बाप ने अपने बेटे को पहले तो शागिर्दों के पास लेकर गया, फिर यीशु के पास लाता है। पहले वो जब शागिर्दों के पास लेकर जाता है, और शागिर्द क्या करते हैं? वो बदरू को नहीं निकाल सकते। वो क्या करता है? वो मायूस नहीं होता, वो वापिस नहीं चला जाता, वो घबरा नहीं जाता, वो उम्मीद को नहीं छोड़ता। वो अपने बेटे के लिए अपने दिल में दर्द रखता है, और वो चाहता है कि मेरा बेटा इन इन इस बदरू से रिहाई पा जाए, आजाद हो जाए। क्या हमारे अंदर ऐसा दिल है? क्या हम दूसरों के लिए दर्द रखते हैं? अगर हम किसी के लिए शिफायत कर रहे हैं या अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा, उसमें टाइम लग रहा है, तो हम
क्या हम उससे मायूस हो जाएं? नहीं, हमें क्या करना है, हमें मायूस नहीं होना, हमें अपनी दुआ को जारी रखना है। जिस तरह उस बाप ने कोशिश की, पहले वो शागिर्दों के पास लेकर गया और शागिर्दों ने बदरूह को नहीं निकाल सके, फिर वो यीशु के पास लेकर आता है। हमें भी उन लोगों को जो मसीह से दूर हैं, जो तरह तरह की अबलीसी तासीरों में फंसे हुए हैं, अबलीस ने उन्हें तरह तरह से जकड़ा हुआ है। जिस तरह मैंने जिस्म के कामों के बारे में बताया, अबलीस ने इनमें किसी भी बात में लोगों को जकड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है, उन्हें यीशु के पास लेकर जाना है। हम इधर उधर भागते हैं, पीरों के पास, फकीरों के पास, कि ये काम हमारे हो जाए। हम जब हार जाते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं नजर आता, फिर हम यीशु के पास आते। हम पहले क्यों नहीं यीशु के पास आ जाते, जो कि हर चीज का हल हमारे यीशु के पास है। तो हमें क्या करना है, हमें हम क्या अपने आप को इस ग्रुप में फिट करते हैं जिसमें उसका बाप है? हमारे अंदर दूसरों के लिए भी दर्द होना चाहिए, एहसास होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए। हम अपने अजीजों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए रखनों में खड़े हों, ताकि खुदावंद उन्हें आजाद करे। खुदावंद क्या करे? यस्सु उन्हें आजाद करे। आज हम अपने आप को चेक करें कि हम कहां पर खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब हम बात करेंगे ग्रुप नंबर 3 की, जिसमें हम देखते हैं फक्की और फरीसी। हम अपने आप को चेक करेंगे, क्या हम ऐसे लोगों में तो नहीं पाए जाते? हमारा ग्रुप कहीं ऐसा तो नहीं है फक्की और फरीसियों जैसा? वो क्या करते थे? फक्की और फरीसी बहस कर रहे थे। पहली आयत में ही मैंने पढ़ा, यहाँ पर लिखा है, जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फक्की उनसे बहस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फक्की उनसे बहस कर रहे हैं। क्या बहस कर रहे होंगे? यही कि तुम यस्सु के साथ साथ चलते हो, यस्सु को फॉलो करते हो, तुम इसमें से बदरूह को नहीं निकाल पाए। उनको बातें सुना रहे होंगे, उन पर उंगलियां उठा रहे होंगे कि तुम तो यस्सु के शागिर्द हो, तुमसे एक बदरूह नहीं निकली, तुम ये नहीं कर सके, तुम वो नहीं कर सके। तो वहां पर क्या हो रही थी? बहस हो रही थी, क्योंकि फक्की और फरीसी ऐसे थे जो हमेशा किसी ना किसी तरह यस्सु मसीह को और उसके शागिर्दों को हर तरह से फंसाने की कोशिश करते थे। फक्की और फरीसी क्या करते थे? हमेशा यस्सु को कहते थे, तेरे शागिर्द तो हाथ धोकर नहीं खाना खाते, तेरे शागिर्द तो रोजा नहीं रखते। यस्सु को भी कहते थे, तू तो ऐसे लोगों से बात करता है जो मसूल लेते हैं, तू गुनाहगारों के पास बैठता है। क्या हम भी तो नहीं कहीं ऐसे ग्रुप में मौजूद कि हम जो लोग खुदावंद का काम कर रहे हैं उन पर उंगलियां उठा रहे हैं कि ये तो काम ऐसा कर ही नहीं रहे, ये तो ऐसे करे? उनमें से हमेशा हम कीड़े निकालते रहते हैं, खुदावंद के खादमों पर उंगलियां उठाते हैं। कहीं हम ऐसे ग्रुप में तो नहीं मौजूद? हम अपने आप को क्या करें? चेक करें, हम उस फक्की और फरीसियों जैसे ग्रुप में तो नहीं? खुद तो वो खुदा का काम नहीं करते थे, खुद तो वो मसीह को कबूल नहीं करते थे, और जिन्होंने कबूल किया हुआ था उनको भी क्या करते थे? मसीह के खिलाफ कर देते थे। ऐसा आज भी होता है। लोग खुद तो मसीह यस्सु का नाम ऊंचा नहीं कर रहे, खुद तो कोई खुदावंद के नाम से काम नहीं कर रहे, लेकिन दूसरों के कामों में क्या कर रहे हैं? रुकावट डाल रहे हैं। कहीं हम अपने आप को ऐसे ग्रुप में तो नहीं फिट कर रहे? चेक करना है हमें आज अपने आप को, अपनी जिंदगियों को। अगर हम कहीं ना कहीं ऐसी बात हमारे अंदर पाई जाती है, तो हमें अपने अंदर से निकालना है इस बात को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हम देखेंगे ग्रुप नंबर 4, आखिरी ग्रुप नंबर 4, शागिर्द। क्या हम
यीशु के शागिर्दों जैसे ग्रुप में है। यहाँ पर जो बात हो रही है इस सिचुएशन में, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये जब यीशु मसीह उठाए गए, जब यीशु मसीह चले गए, उसके बाद जब मोजज़ात हुए, यीशु के शागिर्दों ने मोजज़ात किए, ये तब उसके बाद की बात नहीं, ये जो अभी वाकया है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि हम इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त जो बात हो रही है, हम यीशु के शागिर्दों जैसे ग्रुप में तो नहीं। यहाँ पर जो लिखा है जब वहां पर बहस हो रही थी, बात हो रही थी, तो वो बात क्या थी, वो क्यों वो बहस कर रहे थे फकीयों और फरीसियों से। यीशु ने उनसे पूछा बाद में कि तुम लोग क्यों बहस कर रहे थे, क्या वजह थी कि यीशु के जो शागिर्द थे वो उस बदरू को ना निकाल पाए, क्या ऐसी वजह थी। यहाँ पर अगर हम वर्स देखें, लिखा है 28 में लिखा है, जब वो घर आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम इसे क्यों ना निकाल सके। यहाँ पर सवाल किया जा रहा है यीशु से, उसके शागिर्द कहते हैं कि हम क्यों ना उस बदरू को निकाल पाए। तो लिखा है, उसने उनसे कहा, ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। अगर हम देखें इसी हवाला को लूका की इंजील में और मत्ती की इंजील में, तो ये वहां पर लिखा है तुम्हारे ईमान की कमी की वजह से। ये किस्म किस वजह से नहीं निकली उनसे, वहां पर उनका ईमान कमजोर था। अगर हम इस चैप्टर से ऊपर जाके देखें तो वहां पर हमें मिलता है कि यीशु मसीह उन्हें वहां पर इख्तियार भी देते, उन्हें अथॉरिटी भी देते कि तुम ऐसा करोगे, मेरे नाम से सांपों और बिच्छुओं को कुछ लोग इब्लीस की सारी कुव्वत पर गालिब आओगे। लेकिन यहाँ पर वो बदरू को नहीं निकाल पाए, क्या वजह थी। हो सकता है वो आगे जाके मैं बताती, यहाँ पर लिखा है कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह से नहीं निकल सकती। तो हो सकता है वो उस तौर से दुआ ना कर पा रहे हों, उनके अंदर एक बात पाई जाती थी, उनके अंदर एक बात है, उनके अंदर एक खामी थी, मैं ये कह सकती। वो क्या थी हम खुदा के कलाम में देखेंगे। लिखा है, अगर हम वर्स देखें 33, तो उसमें लिखा है, फिर वो कुफ्रे नहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा कि तुम राह में क्या बहस करते थे। यहाँ पर फिर यीशु ने उनसे पूछा, पहली बार यहाँ पर हम देखते हैं कि 16 आयत में पूछा यीशु ने उनसे, उसने उनसे कहा, पूछा तुम उनसे क्या बहस कर रहे थे। फिर यीशु उनसे पूछता है कि तुम राह में किस बारे में बहस कर रहे थे, क्या बहस कर रहे थे। तो यहाँ पर लिखा है, वो चुप रहे क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है कि वो आपस में ये बहस कर रहे थे, उसके शागिर्द पतरस, कौन, पतरस, यकूब और यूहन्ना, वो आपस में ये बहस कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। ये हमारे अंदर तो नहीं बात पाई जाती, हम अपने आप को चेक करें, क्योंकि वो इस वजह से ही उस बात को ना निकाल पाए, उस बदरू को ना निकाल पाए, क्योंकि उनके अंदर ये चीज मौजूद थी कि वो एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझ रहे थे। हो सकता है पतरस याकूब को कह रहा हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, यूहन्ना जो है वो पतरस को कह रहा हो मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो वो एक दूसरे से बदरू को निकालने की बजाय वो आपस में ये बहस कर रहे हो कि हमसे बड़ा कौन है, जो बड़ा है वो इसको निकाले। तो क्या हम ऐसे ग्रुप में तो नहीं मौजूद जो अपनी ही प्रेज करवाना चाह रहे हूँ, जो कहें सब लोग मेरा ही नाम ले, मेरी ही तारीफ करें, मेरे ही नाम को ऊंचा करें। क्या हम ऐसे ग्रुप में तो नहीं मौजूद। लिखा है, आगे लिखा है कि यीशु आगे उनसे क्या कहता है, और फिर आगे लिखा है, फिर उसने ये बैठकर उन 12 को बुलाया, उनसे कहा कि अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में पिछला और सब का खादम है बने। क्या लिखा है, हमें छोटा बनना है। अगर हम क्या बड़े होना चाहते हैं, हमें बच्चों की मानित बनना है। तो अगर हमारे अंदर कोई ऐसी बात पाई जाती है कि लोग हमारी वाह वाह करें, लोग कहें कि वाह
कितना जबरदस्त कलाम इसने सुनाया, कितने हर जगह पर जहां पर मसीह यस्सु का नाम आना, लोग अगर हमारा रवैया ऐसा है कि लोग यस्सु की नाम की जगह हमारा नाम ले के कहें लोग कि जी मेरा नाम लो तुम स्टेज पर जा करके, मैंने दुआ की। मेरे साथ ये वाकया हुआ, मैं खुदावंद में जब आई तो एक घर के अंदर प्रे होती थी, उस घर में मैं एवरी वेडनेसडे प्रे के लिए जाया करती थी और वहां से मेरी जिंदगी तब्दील हुई। मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, वहां पर मैंने सही तालीम को जाना कि खुदा क्या है, खुदा की मोहब्बत क्या है, वो किस तरह हमारा नजात। तो मैंने सही मायनों में खुदा के कलाम को जानना शुरू किया। उस वेडनेसडे प्रे मीटिंग पर मैं जब जाती थी तो वहां का जो खादम था, कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि हम फिर से एक, जिस घर में मैं जाती थी प्रेयर के लिए, एक बहुत बड़ी कन्वेंशन थी और वहां पर मैंने गवाही देनी थी। मैं इंग्लैंड से पाकिस्तान में गई तो वहां पर वो भी खादम मौजूद था जब मैं जिस घर में मैं जाती थी। तो वहां पर गवाहियों का मौका था और मुझे खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं गवाही दूं कि खुदा ने किस तरह मेरी जिंदगी को चेंज किया। तो वहां पर वो खादम मौजूद था और उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुम जाकर मेरा नाम लेना, बताना जाकर के हमारे घर तुम आती थी और ये खादम था, मेरा नाम ये है, और मेरी इनके घर, ये खादम के घर में जब इनके घर जाती थी तो इस खादम की वजह से मेरी जिंदगी तब्दील हुई। तो ये देखो यहाँ पर जो है ये ग्रुप वो ही है, लिखा है कि उसने कहा कि मेरा नाम ऊंचा हो, उस खादम ने बताया जाए कि मेरी वजह से इसकी जिंदगी में काम हुआ। हमें अपने आप को चेक करना है कि आया हमारा रवैया ऐसा तो नहीं कि हम अपने नाम को ऊंचा कर रहे हैं और खुदा के नाम को बाद में दर्जा दे रहे हैं। नहीं, सबसे पहले हमने खुदावन के नाम को ऊंचा करना है। और जब हम यस्सु का नाम पहले रखेंगे, अपने ईमान को मजबूत रखेंगे, तो फिर ही हम यस्सु के नाम से बड़े बड़े काम कर सकते हैं, मोजज़ात कर सकते हैं। और जब हम दुआ में ठहरेंगे, रोजे में ठहरेंगे, तब ही हमारी जिंदगियों से बड़े बड़े काम होंगे। कलाम को ज्यादा पढ़े, दुआ करें और हो सके तो रोजा में भी ठहरें। जब हम ऐसा करेंगे तो तब खुदावंद हमें कुव्वत ताकत देगा ताकि हम यस्सु के नाम से इब्लीस की सारी कुव्वतों पर क्या हो, गालिब आए। प्रेज द लॉर्ड। तो आज मैंने आपके साथ जो शेयर किया है वो 4 तरह के ग्रुप है और हमने आज अपने आप को चेक करना है कि हम किस ग्रुप में पाए जाते हैं। और अगर हम किसी गलत ग्रुप में हैं तो उसमें से हम अपने आप को निकालें और एक वो ग्रुप जो कि मसीह यस्सु का है, ईमानदारों का है, जो सच्ची और सही तालीम का है, उसमें आपको अपने आप को शामिल करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर जो बदरू थी इस लड़के के अंदर, आखिर में बोलूंगी, वो गूंगी और बहरी थी। और वो जो गूंगी और बहरी रूह थी वो क्या करती है, वो कानों को बंद कर देती है ताकि खुदा का कलाम ना सुना जाए। बहरी रूह क्या करती है, कानों को बंद कर देती है। और खुदा का कलाम लिखा कहता है कि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना खुदा के कलाम से। और जब गूंगी रूह हमारे कानों को ही बंद कर देगी तो हम खुदा के कलाम को कैसे सुनेंगे। अगर हम दुनिया दूसरी ऐसे, जैसे मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ और आप मेरी, ये कानों की बात नहीं, रूहानी कानों की बात। अबली सम टाइम हमारे रूहानी कानों को बंद कर देता है ताकि वो हमारा ध्यान इधर उधर ले जाता है ताकि हम खुदा के कलाम को ना सुन पाए और वो बीज जो बोया जा रहा है वो हम तक के हमारी जिंदगियों में ना बोया जाए। तो वो इसीलिए हमारे कानों को जो है वो इधर उधर की बातों पर लगा देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीला से खुदावंद ने हम सबको बड़ी बरकत दी है। गॉड ब्लेस यू।